Shocking revelation in the case of newly married Indore couple Raja Raghuvanshi and his wife Sonam Raghuvanshi, who went missing from Meghalaya on the 2nd of June. Now, Indore tourist Raja Raghuvanshi was allegedly killed by men hired by his wife during their honeymoon in Meghalaya. DGP Non Grang, in fact, said on Monday morning the wife Sonam surrendered before the police in Uttar Pradesh's Ghazipur, while three other assailants were arrested in overnight raids. One person was picked up from Uttar Pradesh and another two accused were apprehended from Indore by the SIT. Chief Minister Conrad Sangma congratulated the police for cracking the case that had shocked the state and the nation. And the details of it that are coming to light now are equally shocking, viewers. What we're learning is that Raja Raghuvanshi was killed by his wife, Sonam Raghuvanshi, who had hired killers, who had hired these men during their honeymoon in Meghalaya. DGP Nong Rang has confirmed this development, this tragic development. What was the motive? Well, sketchy details as of now, but wife of deceased Raja surrendered before the police in Uttar Pradesh's Ghazipur, while three other assailants were arrested in overnight raids. Remember, they were in Meghalaya for their honeymoon. Absolutely tragic incident there coming to light. Got married just a couple of days before that. And here we have the details now. A case that has now sent shivers down the spine of everyone. A honeymoon in Meghalaya turning into a chilling murder mystery that literally shook the entire nation, and now shocking twists have emerged in the case of the Indore couple, Raja and Sonam Raghuvanshi, who went missing from Meghalaya on the 2nd of June. It now turns out that Raja was murdered not by a stranger, not in an accident, but in a plot masterminded by his own wife. Yes, you heard me right. Sonam Raghuvanshi, the newly-wed bride, has now surrendered before the police in Uttar Pradesh's Ghazipur, while three other accused, hired by her, have been arrested in late-night raids. One was picked up from Uttar Pradesh, two others arrested in Indore. The SIT has worked swiftly, but the big question remains: why did Sonam murder her husband? What was her motive? Was it money? Was it betrayal? Or was she in a relationship with someone else? Perhaps one of the accused. And also, how did she really manage to execute this plan on their honeymoon? Did no one sense anything at all? Chief Minister Conrad Sangma has now congratulated the police, but for the families of tourists, this case clearly has sent chills down the spine of everyone. Let me quickly go across to my colleague Vipin Chaube, who joins us live with more details on the same. Chaube ji, हमें इस murder के बारे में क्या पता है? क्या was this a cold-blooded, premeditated murder, or cold-blooded, premeditated murder, और कुछ बहुत ही horribly wrong हो गया trip के दौरान? हमारे पास क्या details है? Motive क्या था? It's a completely cold-blooded and planned murder और इस पूरे मामले में जो राजा रघुवंशी की पत्नी है सोनम रघुवंशी, जो पिछले 17 दिनों से लापता थी, उसकी गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो गई है, क्योंकि जो तीन संदिग्ध लोग जिनको वहां के टूरिस्ट गाइड ने देखा था, उन तीन संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद ये बताया गया है कि वो सोनम रघुवंशी को पर्सनली जानते हैं। उनके बुलावे पर, यानी सोनम के बुलावे पर वो मध्य प्रदेश से स्पेशली शिलांग आए थे, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई है। 17 दिनों से वो लापता थी
और इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस उनको ढूंढ रही थी। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज है और उसका जो रेनकोट है वो भी बरामद हुआ था, जिसके बाद परिवार ने आशंका जताई थी कि राजा के साथ उनकी बेटी की भी हत्या की जा सकती है और कहीं न कहीं किसी अनहोनी की आशंका को जताया गया था। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर से उसको बरामद किया गया है और पुलिस सोर्सेज ने अभी हमें थोड़ी देर पहले अपडेट किया है कि गाजीपुर के नंद गांव के एक ढाबे के आसपास बेहोशी की हालत में सोनम को बरामद किया गया है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है, फिर उसने अपना परिचय दिया है, परिवार वालों से बातचीत कराई गई है और उसको एक सेंटर ले जाया गया है जहां पर उसका मेडिकल करा के उसको खाने पीने की फैसिलिटी दी जा रही है और पूछताछ की जा रही है, जिसमें सोनम ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस हत्याकांड में वो शामिल रही है, उसको पूरी जानकारी थी। तो मिला-जुला कर 3 भाड़े के हत्यारों समेत सोनम इस पूरे मामले में हिरासत में है। मेघालय पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है गाजीपुर पुलिस, ताकि इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस पूरे मामले का कोई लेना-देना नहीं विपिन है। जी माफी सोनम चाहती और हूँ, राजा विपिन जी माफी चाहती हूँ, आपको टोक रही हूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके चलते हुए हमें ये वी बीन गिवन टू बिलीव कि जो ये अक्यूज्ड है सोनम, उन्होंने जाकर के उत्तर प्रदेश में शी सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस। पर आपकी दी हुई जानकारी के कारण वाज इट अ सरेंडर? नहीं, नहीं। देखिए, ये सरेंडर नहीं है, वो पुलिस से बचने की ऑलराइट। कोशिश में भागने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान क्योंकि वो मध्य प्रदेश जा नहीं सकती थी और मेघालय में ये घटना हुआ था, वहां से भागते-भागते वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर पहुंची थी और यहाँ किन परिस्थितियों में वो एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में पाई गई है, उसको जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है सोनम, उसको फर्स्ट एड देने, मेडिकल देने की कोशिश की जा रही है। पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश की जा रही है। मेघालय पुलिस से संपर्क किया जा रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो इंदौर की रहने वाली थी और ये पूरा हत्याकांड मेघालय में मेघालय के शिलांग शहर में अंजाम दिया गया है। लिहाजा तक यूपी पुलिस में से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सोनम की बरामदगी हुई है, तो पुलिस इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मेघालय पुलिस यहाँ पर आएगी, उससे पूछताछ करेगी और फिलहाल उसका मेडिकल करा के उसको खाने पीना दिया जा रहा है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे मोटिव और इंटेंशन, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको जानने की कोशिश की जा रही है और इस दोनों शब्दों के इन दोनों कहीं ना कहीं शब्दों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है और जिसको लूटपाट, छिनैती और मर्डर समझा जा रहा था, दरअसल वो उसके पत्नी के द्वारा अंजाम किया गया एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसको भाड़े के हत्यारे को द्वारा अंजाम दिया गया था। उसका खुलासा हो गया है, सोनम पुलिस की हिरासत में है, उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से वो बरामद की गई है और फिलहाल पुलिस उसकी हिरासत में है और पुलिस की हिरासत में वो है और पुलिस उससे पूछताछ करके इस पूरे हत्याकांड के पीछे मोटिव और इंटेंशन को जानने की कोशिश कर रही है। जी। बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि ये मेघालय से यूपी और फिर इंदौर तक बिना पकड़े हुए कैसे निकल गई? बिल्कुल वाजिब और बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और वो मेघालय की सीमा को लांघकर 3-4 प्रदेशों से, सोचिए वो मेघालय से निकलती है और किन किन राज्यों से होते हुए वो यहाँ तक पहुंची होगी और मेघालय पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाई और सबसे बड़ी बात यह है लाश को बरामद करने में 3-4 दिन लग गए और सोनम कैसे वहां से निकली, क्योंकि आज के दौर में जो टेक्निकल सर्विलेंस है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी घटनाक्रम में। तो सीसीटीवी फुटेज, उसके मोबाइल की लोकेशन, इन तमाम चीजों से पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है। हालांकि अब वहां के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी के द्वारा इस पूरे मामले में खुलासा किया जा रहा है और सीएम कॉनराड संगमा ने बाकायदा मेघालय पुलिस को इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कांग्रेचुलेट भी किया है और मेघालय पुलिस ने भी ट्वीट करके बताया कि इस हत्याकांड में मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया और पूरी थ्योरी साफ हो चुकी है कि सोनम भी इसमें शामिल थी। लेकिन सोनम ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, सोनम मेघालय से बाहर कैसे निकली, किन किन राज्यों में रही, 17 दिन तक वो कहाँ कहाँ रही, किन किन लोगों से संपर्क में रही, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर कैसे पहुंची और बेहोशी की हालत में एक ढाबे पर कैसे बरामद हुई, बहुत सारे सवाल हैं जो इन 17 दिनों के दौरान खड़े हो रहे थे। उन हर एक सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पास है, वो है सोनम। सोनम पुलिस की हिरासत में है, मेघालय पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिवार सोनम का जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस हत्याकांड में ये सोनम शामिल है। फिलहाल सोनम से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड को कैसे उसने अंजाम दिलवाया है और मोटिव क्या था। क्या लव एंगल है
अपने प्रेमी में उसका शामिल रहा है या फिर पति उसको प्रताड़ित करता था? एंगल क्या है, मोटिव क्या है, वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जिसको जानने की कोशिश की जा रही है। क्या हमारे पास कुछ इस चीज पे इंफॉर्मेशन है कि ये सोनम ने पहले ही प्लान किया हुआ था बिफोर यू नो दे वेंट फॉर देयर हनीमून टू मेघालय? वाज इट प्री प्लान्ड मर्डर? इट्स अ कंप्लीटली प्री प्लान मर्डर, क्योंकि आप समझते हैं कि बाकायदा हनीमून पर जाने के लिए मेघालय को चुना गया। उससे पहले 3 हत्यारों को भाड़े पर हायर किया गया, उनको पेमेंट किया गया, उनको अपनी लोकेशन बताई गई, उनको वहां पर बुलवाया गया, एक अननोन लोकेशन पर राजा को इंटेंशनली ले जाया गया। इसकी मौजूदगी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बॉडी से जितनी सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल फोन, क्योंकि कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, वो सारी चीजें स्नैच की गई और उसके बाद हत्यारे वहां से चले जाते हैं और सोनम वहां से दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें लव एंगल है? क्या कहीं ना कहीं कोई प्रेमी भी इसमें शामिल है जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया? और अगर शामिल है तो क्या मौके पर वो भी था? क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन सुबह सुबह आ रही है। मेघालय पुलिस ने इस स्टोरी को, इस हत्याकांड को क्रैक किया है, ये कहते हुए कि हमने 3 संदिग्ध लोग जिसको देखने का दावा लोकल टूरिस्ट गाइड के द्वारा किया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और उसके जरिए ये इंफॉर्मेशन मिली है कि भाड़े के हत्यारों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसमें उसकी पत्नी सोनम भी शामिल थी। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर से बरामद हुई है और उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि इट्स अ कंप्लीटली कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और फिलहाल ये तय है कि हर चीज पूरी प्लान से, इस हनीमून को ही प्लान इस हत्याकांड के लिए किया गया था, जिसके जरिए राजा को इंदौर से दूर ले जाया गया, एक टूरिस्ट पैलेस में ले जाया गया। हत्या के लिए जो भाड़े के हत्यारे थे उनको बुलाया गया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो अलग डायरेक्शन में चले गए, सोनम अलग डायरेक्शन में चली गई और 17 दिन बाद सोनम यहां से बरामद हुई है और भाड़े के हत्यारे भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जी विपिन जी, जैसा कि आपने बिल्कुल बोला कि सोनम हनीमून पे तो नहीं थी, वो क्लियरली किसी मिशन पे थी। उसने इस मिशन को अंजाम दिया और ये शादी बस एक बहाना थी एक मासूम का कत्ल करने के लिए। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे जो मध्य प्रदेश के रिपोर्टर हैं, वो सोनम के घर पर पहुंचे हैं और सोनम के परिवार वाले ये कहते हुए नजर आए कि ये तो शादी ही उसकी मर्जी से करवाई गई थी और शादी से वो बेहद खुश भी थी, हनीमून को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ ये फैमिली भी नहीं जान पाई और अगर ऐसा कुछ होता तो हम 17 दिन में पुलिस से शेयर करते, क्योंकि राजा के परिवार वालों से कोई दबाव नहीं था। राजा भी उसको खुश रखता था। इस शादी के जो पिक्चर्स आए हैं उसमें भी देखिए जो सोनम है वो बेहद खुश नजर आ रही है। तो कहीं से कोई लूप होल्स नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ऐसा अचानक सोनम के मन में क्या चल रहा था? क्यों राजा रघुवंशी की सुपारी दी उसने? क्यों भाड़े के हत्यारों को हायर किया? राजा को इतनी दूर क्यों ले गई? और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अगर उसको मालूम था तो पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया गया? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम के पास है। सोनम पुलिस की हिरासत में है। थोड़ी देर बाद पुलिस मीडिया से बातचीत करेगी और उसके बाद हर सवाल का जवाब मिलेगा। फिलहाल ये साफ हो चुका है 17 दिन से जिस मर्डर मिस्ट्री को लेकर मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक हलचल मची हुई थी। बाकायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई ऑर्डर किया था और रिक्वेस्ट किया था देश के होम मिनिस्टर से कि सीबीआई को जांच दी जाए, क्योंकि 17 दिन में मेघालय पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। उसमें खुलासा हो चुका है और ये साफ हो चुका है कि राजा रघुवंशी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने भाड़े के हत्यारे के द्वारा कराया। क्यों कराया, इसका जवाब सोनम के पास है।